हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोगों ने होली को बहुत एंजॉय किया होगा। ओके। सो मैंने भी होली को बहुत एंजॉय किया, मैं भी बहुत खेला होली और बहुत एंजॉय किया, अपने फ्रेंड के साथ में भी घूमने गया था। ओके। सो अब होली की मस्ती ख़त्म, अब बैक टू वर्क। सो स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है। सो अब सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये आपका यूनिट 5 का वीडियो पार्ट 2 है। एंड इसमें हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड मैनी मोटिवेशन टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, first start with what is communication. Okay, I have told you in the previous video lecture that what is communication. So communication is the process of establishing connection or link between 2 points for information exchange. That means for communication 2 points must be present, that is transmitter and receiver, and we required a channel which propagates our message signal. Okay. So this is a block diagram of a communication system which have information source. See here, this information source gives information to input transducer. Input transducer gives information to the transmitter, and transmitter sends information to the channel. Here there is a noise. Noise is unwanted signal appear in the channel. Okay. So it is naturally it is present in many, most of them. Maybe it present, maybe it will not present. Okay. So after the channel, receiver receives the information from the channel, and after receiver, output transducer receive the information from the receiver, and this is the destination block. So let's see the function of each block. Okay. So information source, the function of information source is to produce required message which have to be transmitted. Okay. So its function is to uh, means to produce required message signal which have to be transmitted. Okay. So the message signal will be give to fed to the input transducer, and the message from the information source may or may not be in electrical in nature. In case when the message signal produced by the information source is not electrical in nature, an input transducer is used to convert it into a time varying इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जनरली जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो मे बी और मे नॉट बी इन इलेक्ट्रिकल इन नेचर, बट हमें सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है। अगर आपने नहीं अभी तक उसे देखा है तो प्लीज़ वीडियो के लेक्चर पार्ट 1 को जाके देखिए। ठीक है। सो इनपुट ट्रांसड्यूसर हमारे मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ओके। एंड देन ट्रांसमीटर it sends the information. Okay. So transmitter, the function of transmitter, it sends the information over the channel. Okay. Channel is the, what is the channel? Channel, this is the path through which signal propagates from transmitter to receiver. Signal propagates from transmitter to receiver. Okay. And channel may be wired or wireless. Okay. So don't worry. And what is noise? Noise is an unwanted signal. So noise maybe sometimes it is its nature will be random. So and noise may interfere our signal. Okay. So noise is
maybe sometimes it is a random signal, maybe sometimes we call noise to other signals which we don't interested in the communication. Okay, जैसे स्टूडेंट इसको इस तरीके से नॉइज को समझे कि जैसे हम लोग दो लोग बातें कर रहे हो, ठीक है, एंड कोई तीसरा पर्सन आके उसमें बोलना शुरू कर दे, तो हाँ, दो पर्सन जो बातें कर रहे होते हैं उनका कंसंट्रेशन, उनकी बातें डिस्टर्ब होने लगती हैं, क्योंकि वो तीसरा पर्सन भी जो बोल रहा है उसकी बातें भी आप दोनों की बातों में मिक्स होने लगती हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो तीसरा पर्सन जो आके अपनी बातों को बिना हमारी परमिशन के हमसे बातें कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो हमारे लिए क्या हुआ, नॉइस हुआ, क्योंकि हम उसकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी बातें डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल में कम्युनिकेशन में भी होता है कि हम अपना मैसेज सिग्नल जो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि उसमें कोई और सिग्नल आकर मिक्स हो जाए। ठीक है, तो वो सिग्नल क्या होगा, वो सिग्नल रैंडम नेचर का हो सकता है, मीन्स अनवांटेड, जिसको हम नहीं चाहते, बट वो हमारे सिग्नल में बाय डिफॉल्ट मिक्स हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारे लिए नॉइज सिग्नल हुआ। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिसीवर it receives the information from the channel, means receiver extract information from the channel and gives to the output transducer. Output transducer convert the uh, electrical signal to the in original form for the to make signal suitable for the destination, and destination is the receiver. Receiver means that person which have required the message signal. ओके, सो आउटपुट ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और डेस्टिनेशन को ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, एंड डेस्टिनेशन पर जो भी पर्सन है उसको ओरिजिनल मैसेज रिसीव हो जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। आई होप आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक कीजिए और फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क कर रहा है। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, सो ओके, सो नेक्स्ट है बैंडविड्थ। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन कम्युनिकेशन सिस्टम। Okay, so bandwidth may be defined as a frequency range over which an information signal is transmitted. Bandwidth is the difference between the upper and lower frequency limit of the signal. See this. This is a graph between the amplitude and frequency. जब हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको इस तरीके के ग्राफ के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ प्लॉट है जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, ये हमारी F1 फ्रीक्वेंसी है सपोज 20 हर्ट्ज पर, एंड F2 फ्रीक्वेंसी है 15 किलो हर्ट्ज पर। ठीक है, तो अब दिस, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो F2 है ये हमारी क्या हुई, अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट, और ये F1 जो ही हमारी 20 हर्ट्ज, ये हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट हुई। मीन्स बैंडविड्थ क्या होगी हमारी, बैंडविड्थ होगी अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट और लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट के बीच की जो रेंज है वही हमारी क्या हुई, बैंडविड्थ हुई। ठीक है, दैट मीन्स, और बैंडविड्थ हमारी कितनी होगी, F2 माइनस F1। ये बैंडविड्थ इज इक्वल टू F2 माइनस F1, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 15,000 माइनस 20, दैट will be 14,980 hertz. Okay, so this is bandwidth for this graph. Okay, so see, so student, if we classify the communication system, so we can classify communication system based upon the three parameters. First one, direction of communication. Second one is technique of communication, and third one is nature of information signal.
मीन्स अगर हम कम्युनिकेशन सिग्नल को क्लासीफाई करना चाहें तो हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला किस बेस पर कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। दूसरा तरीका क्या है क्लासीफाई करने का? नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारा मैसेज सिग्नल किस नेचर का है। तीसरा तरीका क्या है? टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किस तरीके की टेक्निक यूज कर रहे हैं। सो इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके। सो पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। Based on whether the system communicates only in one direction or otherwise, the communication system are classified as under। दैट मीन्स कि हमारी जो इंफॉर्मेशन वो वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है या बोथ डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रही है या वन बाय वन ट्रांसमिट हो रही है। देन मैसेज सिग्नल जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है उसके बेस पर हम कैसे कम्युनिकेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सी पहला है हमारा सिंप्लेक्स सिस्टम। सिंप्लेक्स सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सिंप्लेक्स सिस्टम, इन दिस सिस्टम the information is communicated in only in one direction. For example, radio or TV broadcasting station can communicate only one direction. See, if this is our broadcasting station, so it can broadcast the signal only one direction, and these are the receivers. Receivers means these are the our रेडियो और टीवी। सो सपोज जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट स्टेशन से सीरियल्स या कोई भी प्रोग्राम ट्रांसमिट होता है तो हम सभी अपने अपने घरों में बैठे उस चीज़ को लाइव देखते हैं या रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखते हैं। तो वो क्या है? वो एक सिंप्लेक्स मेथड है। ठीक है, वो एक सिंप्लेक्स सिस्टम है कि इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ वन वे कम्युनिकेट हो रही है। हम ब्रॉडकास्ट स्टेशन को कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम उससे सिर्फ सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। तो ये हमारा किस टाइप का कम्युनिकेशन हो गया? सिंप्लेक्स सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ आर अवेलेबल एट both ends। Okay, they can transmit as well as receive the information signal but not simultaneously at a time। This system can either transmit or receive the information signal, for example a transceiver or walkie talkie set। See, this is a block diagram for half duplex system। इसमें क्या होता है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों दोनों इंड पर प्रेजेंट होते हैं बट वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एक टाइम पर पहला वाला ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक को कम्युनिकेट करेगा। देन जब उसका मैसेज फिनिश हो जाएगा देन तब दूसरा वाला ब्लॉक पहले वाले को मैसेज ट्रांसमिट करेगा। ऐसा नहीं हो कि दोनों एक टाइम पर दोनों मैसेज को ट्रांसमिट करें, ऐसा नहीं होता है। तो ये किस टाइप का सिस्टम हुआ? हमारा हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। और ये चैनल हो गया हमारा। ठीक है। एंड सिंप्लेक्स में क्या था? सिंप्लेक्स में सिर्फ वन वे था। ओके। हाफ डुप्लेक्स में बोथ वे है बट एट अ टाइम केवल एक ही पर्सन कम्युनिकेट करेगा, चाहे पर्सन वन कम्युनिकेट करे चाहे पर्सन टू कम्युनिकेट करे। जब पर्सन वन कम्युनिकेट कर लेगा देन उसके बाद पर्सन टू कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। एंड फुल डुप्लेक्स सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ आर कम्युनिकेटेड साइमल्टेनियसली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Transmitter and receiver both are communicated simultaneously, for example telephone, mobile, etc। See, this is a block diagram for full duplex system। See, यहाँ पर देखिए मैंने जो चैनल है उसको मैंने दूसरे तरीके से दिखाया है जबकि हाफ डुप्लेक्स में दूसरे तरीके से दिखाया था। ये क्या शो कर रहा है कि एट अ टाइम केवल वन साइडेड कम्युनिकेशन है बट यहाँ देखिए ये क्या है? डुअल साइडेड। दैट मीन कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ आर प्रेजेंट एट द बोथ साइड एंड दे कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। मीन जिस समय पर्सन वन बोल रहा है उसी समय पर्सन टू भी अपना मैसेज बोल सकता है। जैसे हम लोग मोबाइल पर बात करते हैं आजकल, तो ये हमारा क्या है? फुल डुप्लेक्स सिस्टम है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं उसी समय अगर आपने भी बोल दिया तो हम क्या होता है दोनों एक दूसरे की बातें तो नहीं सुन पाते हैं लेकिन हम ये जान जाते हैं कि हम बोल रहे हैं उसी समय आपने भी कुछ मैसेज हमें
ट्रांसमिट किया है। तो ये किस टाइप का सिस्टम हो गया, ये फुल डुप्लेक्स हो गया, यानी इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंड ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकता है साइमल्टेनियसली। सो फर्स्ट टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें 3 टाइप के कम्युनिकेशन है, सिंप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम एंड फुल डुप्लेक्स सिस्टम। ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम कम्युनिकेशन की टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को क्लासीफाई करें तो इसमें दो तरीके की टेक्निक्स आती हैं। एक आता है बेस बैंड ट्रांसमिशन और बैंड पास ट्रांसमिशन। अब ये बेस बैंड एंड बैंड पास ट्रांसमिशन क्या है, तो उसको स्टडी करते हैं। पहले ये देखें कि बेस बैंड सिग्नल क्या होते हैं। कि the original message signal generated from the information source is called baseband signal. Okay, the original message signal, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर टर्म्स काफी सब एक ही जैसे आपको लगेंगे बट उनमें बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। The original message signal generated from information source is called baseband signal. बेस बैंड सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड विदाउट मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया मॉड्यूलेशन, ये क्या है ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बेस बैंड सिग्नल्स आर नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये भी क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो मीन्स जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वॉइस जो है ये क्या हुआ, ये बेस बैंड सिग्नल हुआ। और जैसे मीन्स मेरी वॉइस को प्रोसेस करने के लिए या मेरी वॉइस को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मुझे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। मीडियम मीन्स किसी टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मैंने डायरेक्ट बोला और आपने सुन लिया। ठीक है, तो ये किस टाइप का ट्रांसमिशन हो गया, बेस बैंड ट्रांसमिशन। मीन्स कि मैंने बोला और आपने डायरेक्ट सुन लिया, आपने बोला और मैंने डायरेक्ट सुन लिया, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, बेस बैंड टाइप का ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, इसके लिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ये पूरा एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप का ट्रांसमिशन है बैंड पास। बैंड पास में क्या होता है कि इफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल, मीन्स बैंड पास ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अब सपोज मुझे अपनी आवाज को 2 किलोमीटर दूर किसी पर्सन को सुनानी है, जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से 100 एंड 200 किलोमीटर दूर है, तो मुझे आपको अपनी बात सुनानी है। तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरी आवाज को किसी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर पर मॉड्यूलेट किया जा रहा है, उसके थ्रू मेरी वॉइस को आप तक पहुंचाई जा रही है, यानी मेरी वॉइस को प्रोसेस किया जा रहा है। उसको ट्रांसमिट करने के लिए मुझे किसी कैरियर की, किसी मॉड्यूलेशन टेक्निक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, बैंड पास और पास बैंड ट्रांसमिशन। ओके, सो दो टाइप की ट्रांसमिशन टेक्निक्स हैं, पहला है बेस बैंड ट्रांसमिशन, दूसरा है बैंड पास और पास बैंड ट्रांसमिशन। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं स्टूडेंट। जैसे बेस बैंड ट्रांसमिशन इज प्रीफर्ड एट लो फ्रीक्वेंसीज एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी हम बेस बैंड ट्रांसमिशन कहाँ पे करेंगे, बैंड पास ट्रांसमिशन कहाँ पे करेंगे, अगर हमें अपना कम्युनिकेशन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करना है एंड तो हम बेस बैंड ट्रांसमिशन प्रीफर करते हैं। जैसे कि मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ एंड आप लोग सुन रहे हैं, तो ये किस टाइप का ट्रांसमिशन हुआ, ये बेस बैंड ट्रांसमिशन है, क्योंकि आप मेरे बहुत ही नज़दीक हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके लिए मुझे किसी मॉड्यूलेटिंग कैरियर की, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं कि मेरी बात को वो आप तक पहुँचाए। ठीक है, क्योंकि मैं आप तक अपनी बात को ईजिली पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बहुत होता है। ठीक है, अब ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्या है ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए कि मैं अपनी बात जो आप तक पहुँचा रहा हूँ उसमें कोई और सिग्नल आकर उस सिग्नल को
एंड डिस्टर्ब करे, ठीक है। सो ये हो गया बेस बैंड ट्रांसमिशन। एंड बैंड पास ट्रांसमिशन इज प्रीफर्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी अब बैंड पास ट्रांसमिशन हम तब करेंगे जब हमें अपनी बात को, अपने मैसेज सिग्नल को बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंचाना हो, ठीक है, और वहां पर हमें हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यानी जैसे मुझे यहाँ से सुल्तानपुर से लखनऊ बात करनी है, तो अब बात करने के लिए मुझे बैंड पास ट्रांसमिशन यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो गया। मैं यहाँ सुल्तानपुर से बोलूंगा तो लखनऊ में नहीं सुनाई देगा, तो अब इसके लिए मुझे बैंड पास ट्रांसमिशन यूज करना होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? एक है बैंड पास ट्रांसमिशन है, और दूसरा क्या है हमारा, बेस बैंड ट्रांसमिशन है, ठीक है। बेस बैंड ट्रांसमिशन हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, इसके लिए हमें किसी भी मॉड्यूलेशन टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बैंड पास ट्रांसमिशन को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, इसके लिए हमें मॉड्यूलेशन टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विदाउट मॉड्यूलेशन टेक्निक बैंड पास ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल। मैंने बताया था आपको शुरू कि अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम को क्लासिफाई करना चाहें कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा हमने पढ़ लिया टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, या एंड तीसरा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब अगर यानी कि हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल का नेचर कैसा हो, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी अब अगर हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा एनालॉग फॉर्म में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। और अगर हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आइए इसे वन बाय वन स्टडी करते हैं, क्या होता है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड क्या होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। So analog communication is a data transmitting technique in which information signal is transmitted in analog nature. Okay, एनालॉग कम्युनिकेशन में भी हम डेटा मीन्स इसमें सारे मैसेज सिग्नल आ गए, मीन्स टेक्स्ट भी आ गया, वीडियो भी आ गया, इमेज भी आ गई, मीन्स सारे जो भी हमारा मैसेज सिग्नल हो वो किसी भी फॉर्मेट में हो उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। मीन्स एनालॉग कम्युनिकेशन इज अ डेटा ट्रांसमिटिंग टेक्निक इन विच इंफॉर्मेशन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन एनालॉग नेचर। मीन्स वो एनालॉग फॉर्म में जो हमारा मैसेज सिग्नल उसको हम एनालॉग फॉर्म में ही ट्रांसमिट करते हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम को हम एनालॉग कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम, जैसे हमारा मैसेज सिग्नल है ये एनालॉग मैसेज सिग्नल है, ठीक है, ये एनालॉग फॉर्म में है। अब एनालॉग एंड डिजिटल क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एनालॉग मैसेज सिग्नल है, मैंने बताया था कम्युनिकेशन के लिए तो बेसिकली हमें दो ब्लॉक्स को चाहिए ही चाहिए। पहला क्या है, ट्रांसमीटर एंड दूसरा रिसीवर एंड अ चैनल। थ्री थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर, ठीक है। तो अब हमारा जो एनालॉग मैसेज सिग्नल है हमें इसको, अगर ये हमारा कौन सा, ये ब्लॉक डायग्राम ये हमारा बैंड पास है, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलेटर एक लगा हुआ है। ये मॉड्यूलेटर क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अभी चूंकि एकदम नया टर्म्स सारे आ रहे हैं आपके सामने, तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको ये सारे टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप। सो स्टूडेंट्स, एनालॉग मैसेज सिग्नल को हमने ट्रांसमीटर में दिया। ट्रांसमीटर में क्या होता है कि एक मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर में कैरियर सिग्नल होता है, ठीक है। उस कैरियर सिग्नल के थ्रू हम इस एनालॉग मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं एंड इसको चैनल पर ट्रांसमिट कर देते हैं। रिसीवर साइड क्या करता है कि इस चैनल से इस मैसेज सिग्नल को जो भी हमने यहाँ से भेजा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड उसमें से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करके डेस्टिनेशन को
ट्रांसमिट कर देता है। ये हो गया हमारा बेसिक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी इसमें कहीं पर भी हमने सिग्नल का नेचर नहीं चेंज किया। यहाँ पर हमारा एनालॉग फॉर्म में सिग्नल था और हमने डायरेक्टली उसको मॉड्यूलेट किया एंड डायरेक्टली डीमॉड्यूलेट करके डेस्टिनेशन को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन इज एनालॉग कम्युनिकेशन। Analog communication needs lower bandwidth compared to digital communication। ये एक मेजर एडवांटेज है कि एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए हमें बैंडविड्थ क्या होती है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीन्स जितनी डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के लिए हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत कम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है हमें एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, so second is digital communication system। okay, so student suppose अब हमने पढ़ लिया कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन इज अ डेटा ट्रांसमिटिंग टेक्निक इन विच इंफॉर्मेशन सोर्स इज ट्रांसमिटेड इन डिजिटल नेचर। ओके, एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या था, एनालॉग कम्युनिकेशन भी एक डेटा ट्रांसमिटिंग टेक्निक है जिसमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा था। अब यहाँ पे हमारा क्या ट्रांसमिट हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट हो, यानी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस में हो रही है, डिजिटल में हो रही है। ठीक है, अच्छा तो अब इसको समझ लेते हैं। ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब इसको मैं ब्लॉक बाई ब्लॉक एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखिए इसमें क्या क्या है। यहाँ सोर्स है, सोर्स से इनपुट ट्रांसड्यूसर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। फिर यहाँ पर है सोर्स इनकोडर, यहाँ पर है चैनल इनकोडर, चैनल इनकोडर से डिजिटल मॉड्यूलेटर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। यहाँ से चैनल में गया, चैनल से फिर ये इतना पार्ट कितना हो गया, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर साइड हो गया। इतना पार्ट हमारा कितना हुआ, ट्रांसमीटर। फिर ये चैनल हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इतना जो बाकी का पार्ट है ये हमारा क्या है, रिसीवर साइड का है। ओके, तो रिसीवर साइड पे क्या है, डिजिटल डीमॉड्यूलेटर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, then channel decoder, source decoder, output transducer and digital to analog converter and output signal। okay, so इसको हम वन बाई वन समझते हैं। सो स्टूडेंट अभी हमने देखा था एनालॉग कम्युनिकेशन में जो हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। एंड ये हमारा है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में जो हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट होगा ये डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारा सोर्स होता है, अब इस सोर्स पे सपोज जो हमारा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है वो सपोज एनालॉग फॉर्म में है। ठीक है, सपोज ये हमारा सोर्स जो है वो हमारा एनालॉग फॉर्म में सिग्नल को यहाँ पे इनपुट हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर इस एनालॉग सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड देन इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इनपुट पर हमने कोई डिजिटल सिग्नल ही इनपुट किया है, ठीक है, जो हमारा सोर्स है अगर ये हमारा डिजिटल सिग्नल ही है तब हमको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो सोर्स है हमारा यहाँ पर ऑलरेडी सिग्नल हमारा डिजिटल फॉर्म में है, तो हम सिर्फ इनपुट ट्रांसड्यूसर की हेल्प से उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर क्या करता है कि सोर्स इनकोडर compresses the data into minimum number of bit। This process helps in effective utilization of the bandwidth। It removes the redundant bit। ओके, ये क्या करता है कि जब हमारा डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है जो हमारा डिजिटल फॉर्म में है
उसको कंप्रेस करता है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में कंप्रेस कर देता है, मीन्स उसमें से रिडंडेंट बिट्स को रिमूव करता है, ठीक है। एंड देन इस नंबर ऑफ बिट्स की ये जो सीरीज होती है इसको चैनल इनकोडर को ट्रांसमिट कर देता है। चैनल इनकोडर क्या करता है कि उसमें नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स को ऐड कर देता है, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट्स यूज होती है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए। ओके, सो ये आप लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में पैरिटी बिट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो चैनल इनकोडर यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी बिट्स ऐड कर देता है, जिससे हम एरर को, अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हमारे में ऐसे सिग्नल में कुछ एरर आ जाए तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकें और करेक्ट भी कर सकें, ठीक है। यहाँ से जो हमारा डिजिटल फॉर्म में जो हमारा बिट की सीरीज है वो हमारा ट्रांसमिट होता है कहाँ पे, डिजिटल मॉड्यूलेटर में, ठीक है। डिजिटल मॉड्यूलेटर हमारा सिग्नल को मॉड्यूलेटर का काम आप जानते ही हैं कि क्या होता है कि कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पर मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देता है, ठीक है। एंड चूंकि अभी तक हमारा क्या है, ये डिजिटल मॉड्यूलेटर है और हमको ट्रांसमिट कहाँ करना है, चैनल के थ्रू, तो हम फिर इसको क्या करेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है, हम जो भी ट्रांसमिशन करते हैं वो एनालॉग फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको अगर चैनल पे करना है तो हम क्या करते हैं, इसको डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ चैनल पे ट्रांसमिट किया, चैनल से फिर यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ से हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया और सिग्नल को, ये रिसीवर साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से हमने मैसेज को अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और एंड देन डिजिटल मॉड्यूलेटर के थ्रू हमने इस जो हमारा सिग्नल आया था उससे हमने डिजिटल कैरियर को अलग कर लिया, मीन्स हमने अपने डिजिटल मैसेज सिग्नल जो हमारा था उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। और उसको हमने चैनल डिकोडर में सेंड किया। चैनल डिकोडर मैंने बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ इनकोडर में पैरिटी बिट्स यानी सिक्योरिटी बिट्स ऐड की जाती हैं। वो किस लिए होती हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर हमारे मैसेज सिग्नल में कोई कुछ लॉस हो जाए या कुछ एरर आ जाए तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकें और करेक्ट कर सकें। तो वो काम यहाँ पे होता है चैनल डिकोडर में, ठीक है। अगर उसमें जो भी एरर रहती है उसको करेक्ट करके फर्दर मैसेज को भेजा जाता है सोर्स डिकोडर में, ठीक है। सोर्स डिकोडर में, सोर्स डिकोडर क्या करता है हमारा कि हमारे सिग्नल को फिर से जो हमारी यहाँ पर हमने उसको सोर्स इनकोडर में हमने मैसेज सिग्नल को कंप्रेस किया था एंड यहाँ से हमने रिडंडेंट बिट्स को रिमूव कर दिया था, उन सारी मीन जो कंप्रेस्ड फॉर्म में सिग्नल है उसको हमारा एक्सपैंड कर देता है विदाउट लॉस, ओके। एंड सिग्नल को फिर से रिक्रिएट कर देता है, ठीक है। एंड देन इसको क्या करता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर में सेंड कर देता है नेक्स्ट ब्लॉक में। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल है ये क्या है, बिट की सीरीज है, ठीक है। इसको डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंड एनालॉग फॉर्म से फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर आउटपुट सिग्नल रिसीवर को रिसीव हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर हमारा सिग्नल एनालॉग फॉर्म में था तो हम यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं, बट अगर यहाँ हमारा डिजिटल सिग्नल ही था तो फिर यहाँ पर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमारा मैसेज सिग्नल ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल था तो यहाँ पर भी हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आउटपुट पर हमें डिजिटल सिग्नल ही मिलेगा। तो ये पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, ओके। सो here some there are some terms that frequency, what is frequency, what is wavelength, okay. So
This is you know that this is a simple definitions. Now, what is modulation? अभी हम लोगों ने जब बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड बैंड पास ट्रांसमिशन पढ़ लेते तो वहाँ पर ये टर्म आया था मॉड्यूलेशन। मैंने आपको बताया था कि इसके हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस with the instantaneous values of the modulating signal। means modulating signal means हमारा जो मैसेज सिग्नल है, विदाउट मॉड्यूलेशन जो हमारा मैसेज सिग्नल उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। एंड जब हम कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी जो हमारा मैसेज सिग्नल है, तो इस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। एंड इसके रिजल्ट में जो हमारा आउटपुट पर जो सिग्नल आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एंड जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, सारे टर्म एक ही जैसे आपको साउंड हो रहे होंगे, बट उनमें डिफरेंस है, ठीक है। सो उसको ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। When characteristic of the carrier signal is changed in accordance with the instantaneous values, okay, of the message signal, this process is known as modulation. The resulting signal is known as modulated signal, okay, and the original message signal is known as modulating signal. Original message signal means this is the message signal, okay. So what is modulation? When we change the characteristic of the carrier signal in accordance with the instantaneous values of the modulating signal or message signal, this process is known as modulation. The resulted signal we receive is known as modulated signal, and the original signal is known as modulating signal, okay. But what is the need for modulation? I have told you in the baseband and bandpass transmission. For short distance, we don't need modulation. For long distance, we need modulation. Okay, so the baseband signals are not suitable for direct transmission over the long distances. For such a signal to travel over long distances, its strength has to be increased by modulating with a high frequency carrier wave which does not affect the characteristic of the modulating signal। ये मैंने आपको प्रीवियसली अभी बेस बैंड एंड बैंड पास ट्रांसमिशन में एक्सप्लेन किया था कि जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता है तो हमारा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी हाई नहीं होती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमारा प्रॉपरली सूटेबल हो, ठीक है। क्योंकि हमारा सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही इतनी नहीं है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सस्टेन कर सके। तो इसीलिए हमें एक टेक्निक चाहिए, इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम अपने मैसेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। एंड मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस क्या है कि सी एंटीना साइज गेट्स रिड्यूस। मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करने से जो हमारे एंटीना के साइज होते हैं वो भी रिड्यूस हो गए। नो सिग्नल मिक्सिंग अकर, जो हमारे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो रहे थे, जो हमारे सिग्नल मिक्सिंग हो जा रहे थे, वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया। कम्युनिकेशन की रेंज इंक्रीज हो गई। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स अकर हो गए। एडजस्टमेंट इन द बैंडविड्थ इज अलाउड। ये सारे आप लोग टर्म नहीं अभी समझ में आ रहे होंगे। मल्टीप्लेक्सिंग, एडजस्टमेंट इन द बैंडविड्थ कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ये आप लोग आगे नेक्स्ट ईयर में जब आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करना इन सबको पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में टॉपिक हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ मैं अभी आपको बेसिक्स बेसिक्स चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, एंड रिसेप्ट सिग्नल की रिसेप्शन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ एंटीना कैलकुलेट करने के लिए लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू सी बाई 4 इस फॉर्मूले से हम एंटीना की हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, I have class make a classification. See, this is a type of means कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। हमने पढ़ लिया मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। अब उसके टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, क्योंकि अगर हमको अपने सिग्नल को वन प्लेस टू अदर प्लेस तक कम्युनिकेट करना है विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल क्वालिटी, तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। मॉड्यूलेशन टेक्निक कितने तरीके से होती है, तो हम उसको क्लासीफाई किए। ठीक है, तो पहले हमने उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया कि कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स वेव मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब ये सब मैं टर्म आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे ये सारे मॉड्यूलेशन आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ठीक है नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन को हमने डिफाइन किया, तो क्लासीफाई किया, तो कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन फर्दर हमने क्लासीफाई किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन में। ठीक है, एंड पल्स मॉड्यूलेशन को जब हमने क्लासीफाई किया तो इसमें टू पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन को हमने जब क्लासीफाई किया तो ये तीन पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन को हमने क्लासीफाई किया तो ये टू पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये बहुत सारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? When the amplitude of the carrier signal varies in accordance when the amplitude of the carrier signal varies in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal, then it is called amplitude modulation, and the resulted signal is called amplitude modulated signal. Means when we change the characteristic of the carrier signal in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal with respect to instantaneous amplitude of the modulating signal. This is called amplitude modulation, and the resulted signal is called amplitude modulated signal. Amplitude modulated amplitude modulation is also known as double sideband full carrier। ये जो टर्म है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसको डबल साइडबैंड फुल कैरियर क्यों कहते हैं। ठीक है, सो एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। The instantaneous values of modulating signal can be represented as EM is equal। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप बुक्स में और मेरी वीडियो को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स ने कोसाइन वेव्स को लेकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एक्सप्लेन किया है और मैंने साइन वेव लेकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एक्सप्लेन किया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ओके, सो
The instantaneous values of modulating signal can be expressed as this is our modulating signal or original message signal converted in electrical form. Em is equal to Em sine omega mt, equation 1, where Em small em modulating signal, capital Em maximum amplitude of modulating signal, omega is equal to 2 pi fm. This is angular frequency. Fm is the frequency of modulating signal. Okay. And instantaneous values of carrier signal can be represented as EC is equal to कैपिटल EC साइन ओमेगा CT. ये हमारा मैसेज सिग्नल है एंड ये हमारा कैरियर सिग्नल है. ये हमारा क्या है? कैरियर सिग्नल है. अब इस कैरियर सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करेंगे. ओके. सी दिस ग्राफ. ये हमारा क्या है? मैसेज सिग्नल है. एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम. ये हमारा क्या है? ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है जिसका पीक एम्पलीट्यूड कितना है? Em माइनस Em. बी ये क्या है? ये हमारा कैरियर सिग्नल है जिसका पीक एम्पलीट्यूड ये हमारा क्या है? साइनोसॉइडल वेव है. ये भी हमारी साइनोसॉइडल वेव है. तो इसका पीक एम्पलीट्यूड क्या है? EC माइनस EC. ठीक है. जब हम इसको एम्पलीट्यूड करेंगे मीन्स इस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं. ठीक है. तो हम कैरियर सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल. तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ठीक है. तो ये देखिए कैसे, देखिए ये हो रहा है. ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है. ये हमारा है कैरियर वेव. अब देखो ये हमारा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है. इसका देखो पीक, ये EC क्या है? पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल. ठीक है. और ये क्या है? Em प्लस EC. ये सारी वैल्यूज आ कैसे रही है अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा. ये आप बस ग्राफ को समझिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता कैसे है. ठीक है. वो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो ये हो गया. देखिए हमारे कैरियर सिग्नल की जो पीक वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही हैं कैसे? अकॉर्डिंग टू द पीक वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके. अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरी कर रही हैं. ये देखिए जैसे जैसे देखिए हमारा ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरी कर रहा है वैसे वैसे हमारे कैरियर सिग्नल की पीक वैल्यूज वेरी कर रही है. देखिए. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. अब ये इसकी वैल्यूज ये कैसे आ रही हैं इसको आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं. यहाँ आप समझ लीजिए ये क्या था हमारा? कैरियर सिग्नल की पीक वैल्यू EC. ठीक है. अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो रहा है तो इसकी EC में अगर हम Em मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पीक वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? Em प्लस EC. Em प्लस EC. तो ये हमारी टॉप वैल्यू हो गई. एंड इसकी लोअर वैल्यू क्या होगी? EC माइनस Em. EC माइनस Em. तो ये हमारी हो गई लोअर वैल्यू. ठीक है. सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी होगा. EC माइनस Em हमारी लोअर वैल्यू होगी नेगेटिव साइड में. एंड EC प्लस Em नेगेटिव, ये हमारी होगी क्या? लोअर नेगेटिव साइड में अपर वैल्यू. ठीक है. एंड Emax क्या है? Emax हमारा जीरो से एंड अप टू द पीक वैल्यू Em प्लस EC. जो ये वैल्यू आ रही है ये टॉप वैल्यू पीक वैल्यू, ये क्या है? हमारा Emax है. एंड Emin क्या है? जो हमारा ये यहाँ पे देखिए ये जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे हमने जीरो लाइन एंड
ये ये जीरो लाइन एंड ये जो हमारी लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट है, इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, ई मीन। ठीक है, ये अभी ये सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रही हैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ई मैक्स इज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम and E min is equal to EC minus EM। E min is equal to ये EC minus EM। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, EC is equal to E max minus EM और E min plus EM and EM is equal to E max minus E min by 2। okay, so okay, for amplitude modulation this is the amplitude value of the amplitude modulated signal EAM is equal to EC amplitude value of the carrier signal plus EM modulating signal। okay, so EM is equal to EC plus EM sin omega mt। so from equation 2 this is this is a carrier signal, EC is equal to EC sin omega ct, this is our carrier signal equation 2। so from equation 2 the instantaneous values of the amplitude modulated signal can be written as EM is equal to EAM sin omega ct, this is the amplitude value of the amplitude modulated signal। so EAM is equal to EC plus EM sin omega mt into sin omega ct, equation number 5। okay, this is our amplitude modulated signal, this is our amplitude modulated signal, this is equation number 5। so what is modulation index and percentage modulation? The ratio of maximum amplitude modulation is very important term। okay, so the ratio of maximum amplitude of modulating signal to the maximum amplitude of carrier signal is called modulation index। so modulation index को हम लोग small m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल m से, तो स्मॉल m is equal to EM upon EC, this is modulation index। okay, एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होती है हमेशा। ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में रहेगी। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। अगर इसकी वैल्यू 0 लेस देन 1 रहती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन। एंड अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो सी व्हेन m इज ग्रेटर देन 1 मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओवर मॉड्यूलेशन। एंड व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज it is also called percentage modulation। okay, so see this is the frequency spectrum for amplitude modulated signal, that is upper sideband frequency fc plus fm and lower sideband frequency is equal to fc minus fm। FLSB lower sideband frequency, FUSB upper sideband frequency, FC carrier signal frequency, FM method signal
or modulating signal frequency. Okay, so according from equation number 5, Em is equal to Ec plus Em sin omega mt sin omega ct is equal to Ec, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है Ec sin ओमेगा ct प्लस Em sin ओमेगा mt इंटू sin ओमेगा ct। तो ये Ec sin ओमेगा ct ये क्या है, ये हमारा यही तो हमारा कैरियर सिग्नल था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हमारा कैरियर सिग्नल जनरेट हो गया प्लस Em sin ओमेगा mt इंटू sin ओमेगा ct। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे दोनों को डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये क्या फार्मूला बन रहा है, 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ई ए एम इज इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ई एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। सो फाइनली जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, ई ए एम इज इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी टी, ये क्या हुआ हमारा कैरियर सिग्नल, प्लस ई एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी लोअर साइड बैंड सिग्नल, माइनस ई एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी इक्वेशन नंबर 8, ये हमारा क्या हुआ, अपर साइड बैंड सिग्नल। ठीक है, ये हमारा क्या जनरेट हुआ, अपर साइड बैंड सिग्नल। अब अगर इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इज इक्वल टू ई एम बाई ई सी, सो ई एम इज इक्वल टू m इंटू ई सी, एम इंटू ई सी। सो यहाँ पर ई एम की जगह हम एम ई सी लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, ई ए एम इज इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी माइनस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ये हमारा अपर साइड बैंड सिग्नल हुआ, ये हमारा लोअर साइड बैंड सिग्नल हुआ, ये हमारा कैरियर सिग्नल हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डबल साइड बैंड सिग्नल विथ फुल कैरियर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, देखिए फुल कैरियर क्योंकि यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल तो फुल कैरियर है, और डबल साइड बैंड मीन्स यहाँ पर दो साइड बैंड जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, इसीलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम डीएसबी एफसी भी कहते हैं, डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिग्नल। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी अगर हम एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी में प्लॉट करें तो यहाँ से हमारा लोअर साइड बैंड यानी एफ एल एस बी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम, एंड अपर फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम एंड कैरियर सिग्नल एफ सी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो निगेटिव आ रहा है, एंड जब मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम बताया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लाइन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं वीडियो पार्ट 1 में, मैंने आपको बताया था कि जब हम इस लाइन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं स्पेक्ट्रम, तो उसमें अगर हमारा एम्पलीट्यूड की वैल्यू निगेटिव आती है तो हम क्या करते हैं, उस सिग्नल का फेज चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 180 डिग्री प्लस और 180 डिग्री माइनस क्या करते हैं, उसका सिग्नल का फेज चेंज करते हैं। फेज चेंज करने से क्या होता है, जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो इसका फेज, इस सिग्नल का अपर साइड बैंड का फेज चेंज कर देंगे। फेज चेंज करने से क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ये देखिए ये इसका स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। तो ये देखिए एफ यू एस बी एफ एल एस बी, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव में आ रहा है ना,
MEC/2 एंड यहाँ पर MEC/2। ठीक है, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। एंड बैंडविड्थ ऑफ एम सिग्नल, तो बैंडविड्थ कितनी हो गई एम सिग्नल की, एफ यूएसबी माइनस एफ एलएसबी, यानी एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम। क्योंकि एफ सी माइनस एफ एम था तो माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ एम। तो एफ सी कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस एफ एम, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है, ट्वाइस एफ एम। कितनी होती है, ट्वाइस एफ एम। एफ एम क्या है, frequency of modulating signal. Okay, so okay, modulation index m is equal to em by ec होता है। अब अगर उसको हम e max और e min के, सपोज हमको em एंड ec की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, हमको न्यूमेरिकल में दिया है e max एंड e min। e max क्या है, e min क्या है, ये मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर हमको न्यूमेरिकल ई मैक्स और ई मीन की वैल्यू दिया हुआ है, उससे हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करना, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से m इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई सी। सो ई एम इज इक्वल टू एम ई सी। ई एम क्या है, ई मैक्स माइनस ई मिन बाई 2 एंड m इंटू ई सी क्या है, ई मैक्स माइनस ई एम। ओके, ई मैक्स माइनस ई एम। So Emax is equal to Emin. Emax minus Emin is equal to twice M Emax minus M Emax plus M Emin is equal to Emax minus Emin is equal to M Emax plus Emin. So M is equal to Emax minus Emin upon Emax plus Emin. Emin means E minimum, Emax, E maximum. Okay. So this is the formula for modulation index in term of E max and E min. E max E min क्या है, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। देखिए यहाँ ग्राफ में मैंने कैलकुलेट किया था, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है उसमें E max ये है, E minimum ये है, EC माइनस EM। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हमें इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमारा ई एम है, इसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वी हैव सीन दैट एम्पलीट्यूड वेव हैज टू कंपोनेंट, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। ओके, थ्री कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल, lower sideband and upper sideband. Therefore, the total power of AM wave is the sum of carrier power PC and the power in two sidebands PUSB and PLSB। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी जो टोटल पावर है इसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारा लग रही है, वो कितना होगा, P टोटल इज इक्वल टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB, यानी पावर इन carrier signal, power for upper sideband, power for lower sideband. Okay, so we know that PC is equal to PEC square by 2R. This is the average power value in terms of amplitude. So see, PC is equal to EC square upon 2R, and PUSB from here, PUSB is equal to MEC by 2
का होल स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू m स्क्वायर ई सी का होल स्क्वायर अपॉन 8r and power in lower side band is equal to m square ec square upon 8r. So put all the values in equation number 13. So we will get P total is equal to EC square upon 2R 1 plus M square by 2, and so P total is equal to, this is carrier power, so PC is P total is equal to PC 1 plus M square by 2. M is the modulation index. So the power required for transmitting of an amplitude modulation signal is 1.5 times the carrier power for a perfect modulation. Okay, means suppose if m is equal to 1, then it is the total power is 1.5 times of the power carrier power. Okay, 1.5 times of the carrier power. So by this formula we can calculate the total power of transmitting amplitude modulated signal. So transmission efficiency, what is transmission efficiency? Transmission efficiency is the ratio of power used in transmitting upper sideband and lower sideband to the total power. This is the ratio of power consumed in lower sideband and upper sideband to the total power is the transmission efficiency. So it is represented by eta. So we know that the power of LSB and USB and P total. So by put the all the values we can calculate the transmission efficiency of amplitude modulated wave. So it is eta is equal to m square upon m square by 2. So in percentage, m square by 2 plus m square into 100. This is the transmission efficiency of amplitude modulated signal. Now we can calculate the current in amplitude modulated signal. So we know that the power and P is equal to I square R. So by the formula I square I, we know that the total power P total, this P total is equal to PC 1 plus M square by 2. So by this formula we can calculate the total current in amplitude modulated signal. So I squared, I total square into R is equal to IC square 1 plus M square by 2. So I total square is equal to IC square 1 plus M square by 2. So I total is equal to IC under root 1 plus M square by 2. This is the total current used in amplitude modulated signal. So ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जब हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था तो हमने उसके लिए इतनी ढेर सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया। हमने पावर कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट किया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट किया। ओके, सपोज अब हमारे पास एक नहीं दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ओके, और हमें उसको सिंगल कैरियर पर ट्रांसमिट करना है। अभी तक हमने एक ही मैसेज सिग्नल को सिंगल कैरियर पर ट्रांसमिट, अब हम दो मैसेज सिग्नल है हमारे पास, तो हमको उन दोनों को ट्रांसमिट करना है। तो अब उसको कैसे करेंगे? सिंपल, सेम फार्मूला, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ये हमारा EM1 EM sin ओमेगा mt हमारा पहला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। EM2 इज इक्वल टू EM2 sin ओमेगा mt हमारा दूसरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। ठीक है, एंड EC इज इक्वल टू EC sin ओमेगा ct हमारा क्या हो गया? कैरियर सिग्नल हो गया। तो सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था, एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड सिग्नल EAM इज इक्वल टू EC प्लस EM1 sin ओमेगा 1 mt प्लस
ई एम टू साइन ओमेगा एम टू टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। इसी तरीके से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई साइन ओमेगा सी टी, दिस इज कैरियर m1 ec by 2 cos omega c minus omega m1 t minus m1 ec by 2 cos omega c plus omega mt plus m2 ec by 2 cos omega c minus omega m2 t minus m2 ec by 2 cos omega c plus omega m2 into t। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है और ये हमारा क्या है, पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अपर एंड लोअर साइड बैंड से, ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है। ये क्या है हमारा दूसरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का लोअर साइड बैंड है और ये क्या है अपर साइड बैंड है। ये उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड वैल्यूज हैं। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसे ड्रॉ होगा। ये हमारा ये बन गया FLSB1 पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, FUSB1, FUSB2 दूसरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का अपर साइड बैंड एंड FLSB2 दूसरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का लोअर साइड बैंड। अब इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम टोटल, सपोज 2 3 4 जितने भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो उनका हम इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे एंड फिर उसका स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट डॉट। m1 क्या है, पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे m1 इज इक्वल टू ई m1 अपॉन ई सी। m2 दूसरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, m2 इज इक्वल टू ई m2 अपॉन ई सी। इसी तरीके से तीसरे चौथे जितने भी सिग्नल होंगे सबका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करके स्क्वायर करके सम कर देंगे तो हमें टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब टोटल पावर जो कंज्यूम होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अभी तक यहाँ पर जो हम एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स सिंगल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए लिख रहे थे, अब हम m टोटल लिखेंगे। तो p टोटल इज इक्वल टू pc 1 प्लस m टोटल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया टोटल पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, so there are so many methods student for generating amplitude modulated signal, double sideband, full carrier, like लो लेवल मॉड्यूलेटर इसी को कहते हैं मीटर मॉड्यूलेटर, हाई लेवल मॉड्यूलेटर इसी को हम बोलते हैं कलेक्टर मॉड्यूलेटर। ओके, सो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, ठीक है, कि कैसे होता है एंड ये आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब इसको हम डीमॉड्यूलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने बता दिया आपको अभी स्टूडेंट्स कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। अब इसको डीमॉड्यूलेट मींस रिसीवर साइड पर कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स रिसीवर साइड पर जो हमें सिग्नल मिलेगा मीन जो हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं कैरी चैनल पर, वो सिग्नल इस तरीके से होता है, ठीक है। यही तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब रिसीवर्स, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक इन्वेलप डिटेक्टर सर्किट के थ्रू पास करते हैं। तो ये क्या होता है, उसमें एक सिंगल डायोड लगा होता है, आरसी फिल्टर लगा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो हमारी देखिए ये जो हमारा है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये एक मिनट देखिए ये वेवफॉर्म आपको समझ आ गया, ये हमारा क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है एंड ये क्या है हमारी वेवफॉर्म, करंट पल्सेस थ्रू दी डायोड, करंट पल्सेस थ्रू दी डायोड। तो ये क्या हो गया, जो ये हमारा डबल दोनों तरफ है, ये हमारा एक ही साइड में शिफ्ट हो गया पॉजिटिव साइड में। एंड इन्वेलप डिटेक्टर क्या करता है कि जो इस सिग्नल की जो पीक एम्पलीट्यूड्स हैं इसको पॉइंट कर लेता है एंड इस फिर क्या करता है उसके अकॉर्डिंग हमारे मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। तो हमें हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल क्या था, हमारा ये था ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, तो ये हमें रिसीवर पर जनरेट हो जाता है, किससे, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, ठीक है।
तो ये है एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है। एंड इसका एक फिगर भी है जो मैं शो कर देता हूँ, ये यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक, ये इन्वेलप डिटेक्टर सर्किट है, ये देखिए, ये फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर दिस यहाँ अप टू दिस, ये डायोड हमारा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, तो हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। मीन्स फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें ये आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जब हमें सिर्फ पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिलेगा, तो हमारी जो आउटपुट पर वेवफॉर्म आएगी वो इस तरीके की आएगी, ठीक है। और ये इन्वेलप डिटेक्टर क्या करेगा बाद में, इन्वेलप डिटेक्टर क्या करेगा, जो इस सिग्नल की जो पीक वैल्यूज है इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा। इस पीक वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद ये हमारे मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, तो हमारा मैसेज सिग्नल इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इन्वेलप डिटेक्टर में ये जो लगा, ये क्या है, हमारा फिल्टर है, ये फिल्टर है। ये क्या करेगा, जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इसमें आए होंगे उसको क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, और जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो हमें डेस्टिनेशन पर हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमें रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो यही स्टूडेंट, यही था हमारा अप टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी आपको किसी पॉइंट पर दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स से ज़्यादा है, एंड आपको थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और जैसे जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है और कैलकुलेट किया, वैसे वैसे आप भी कैलकुलेट कीजिएगा, तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको ये समझाने के लिए स्पेशली मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो इसीलिए ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट्स कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।